Hello students, welcome to CACP IS Academy. Myself Apurva Nandi. Today's date is 3rd April. Let's start today's newspaper analysis. Here you can see the list of topics that we will be doing. And if you want the PDF of this particular CNA, then you can follow our Telegram channel, that is @CACP_Assam, or else you can also scan the QR code. Now, as you know that prelims are upcoming, it is very near from today's date. So if you are interested in taking a crash course with us, then you can call in this number. So we are having a fast track course to secure your prelims. Admissions are open, students are joining, seats are also limited. You can join and call in this number. And or if you are interested in foundation batch, then you can join our Parakram program. Okay, let's start. So you can see these are the list of topics. So today I have brought to you around 8 topics. So last CNAs they had around 4, 5 or 6 topics. Today we have more news in different newspaper like Assam Tribune, The Hindu or Indian Express. So I sketched out the important topics for your prelims as well as mains, which will be helpful for examination. So you see what we will be discussing today. We will be discussing from GS3 4 topics like Purchasing Manager Index, Reciprocal Tariff, Railway Projects in Assam and Project Netra. Along with that, a few topics, around 3 topics from GS2, that Speaker can't be indecisive, ruled by Supreme Court, Digital Child Abuse and BIMSTEC Summit. And another topic, one topic from GS1, that is Indian Heritage and Culture, that is GI tag. GI tag has been conferred to Meghalaya's Rindia. Alright, let's start with the first topic of GS3. The topic that is covered by the industrial growth is Purchasing Manager Index. So it is more important for your prelims, where you have to know about the basic concept of Purchasing Manager Index, the current affairs related to PMI or the institutions associated with the PMI. Purchasing Manager Index is acronymed as PMI. So what is the news actually? The news is manufacturing activity as measured by the seasonally adjusted Purchasing Managers Index climbed to an 8-month high. So it is a certain index or certain point which has been mentioned by S&P Global that it has increased and it reached the 8-month high. What we have to study here is what is Purchasing Manager Index. Now, first of all, you have to know who is a Purchasing Manager Index. So, who is a purchasing manager? So, a person or a group of person who are vested with the job of acquiring raw materials, industrial inputs. मतलब ये एक इंसान हो सकता है या फिर एक group of people वो हो सकते हैं in a industry, in a factory or in a business who have been vested with the work or job of acquiring raw materials, technology, any other thing which actually are the input to produce the output. So they are known as the purchasing manager. Now this purchasing manager index is actually an economic indicator which indicates how a business is performing or how measures the business activity in manufacturing as well as services sector. So this is the definition of PMI, and PMI is released monthly. It is very very important for your prelims that PMI is released monthly by S&P Global. इसको हम थोड़ा सा और आसान तरीके से समझते हैं कि समझिए कि ये एक परचेजिंग मैनेजर है और ये एक बिज़नेस, इसका ही बिज़नेस है या फिर ये किसी के बिज़नेस में काम करता है, एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री में वो काम करता है और ये क्या काम करता है, ये रॉ मटेरियल्स एक्वायर करता है. सो दिस इंडेक्स ऑफ S&P ग्लोबल ये ट्रैक करेगा कि ये जो इंसान है इन्होंने कितना, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल वाज परचेज्ड इन द लास्ट मंथ, हाउ मच क्वांटिटी इज परचेज्ड इन द करेंट मंथ. ठीक है, पिछले महीना वो कितना रॉ मटेरियल ख़रीदा और इस महीना वो कितना रॉ मटेरियल ख़रीदा, वो जो डिफरेंस होगा उसको कैलकुलेट किया जाएगा विद इन अ पीरियड ऑफ 1 मंथ विथ सर्टेन फार्मूला विच इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर आवर सिलेबस. कि यह फार्मूला कैसे कैलकुलेट करता है दैट इज़ नॉट नेसेसरी, पर ये जो कैलकुलेशन निकलेगा कि वो पिछले महीने से इस महीने रॉ मटेरियल परचेज ज़्यादा हुआ है, कम हुआ है या फिर एक ही रहा है, तो वो जो इंडेक्स निकलेगा उसको कहा जाएगा परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स.
ठीक है। सो हाउ इट इज़ कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन सर्वे, S&P सर्वे करेगा ऑफ परचेजिंग मैनेजर। इनके जैसे जो परचेजिंग मैनेजर है कंट्री में, उनको सर्वे किया जाएगा एवरी मंथ कि भाई आप बोलिए कि आप इस महीना कितना रॉ मटेरियल खरीदा। तो एवरी मंथ अगर सर्वे करेगा तो रिकॉर्ड S&P के पास रहेगा। रिगार्डिंग न्यू ऑर्डर, कितना ऑर्डर आपने दिया है, अभी जो आपके बिजनेस में रॉ मटेरियल चाहिए इस महीना आपने कितना ऑर्डर दिया है। प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, सप्लायर डिलीवरीज या फिर इन्वेंटरी का मतलब है रॉ मटेरियल, ये सबको सर्वे करके निकाला जाएगा PMI। ऑलराइट, उसके साथ देखिए यहाँ पर ये PMI देख के आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे द परफॉर्मेंस ऑफ अ बिजनेस। द बिजनेस कैन बी अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस एज वेल एज अ सर्विसेज बिजनेस। मतलब अगर प्रीलिम्स में अगर क्वेश्चन आए कि PMI क्या सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के लिए ही कैलकुलेट किया जाता है? नो, इट इज़ कैलकुलेटेड फॉर मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज सर्विसेज। सो अगर PMI 50 से ऊपर है तो समझिएगा पिछले महीने से इस महीना जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ हुआ है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, इसी वजह से रॉ मटेरियल ज़्यादा खरीदा जाएगा। अगर 50 से कम हुआ है तो मतलब रॉ मटेरियल या फिर अदर इनपुट्स कम खरीदा गया है, एक्वायर कम किया गया है, मतलब प्रोडक्शन कम होगा। उसके साथ PMI अगर 50 ही रहे तो समझिएगा कि वहाँ होगा नो चेंज, मतलब पिछले महीना जितना रॉ मटेरियल खरीदा गया उतना ही इस महीना भी खरीदा गया। सो देयर इज नो चेंज इन प्रोडक्शन। ऑलराइट, सो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स कि इट सिग्निफाई द इकोनॉमिक हेल्थ। अगर आप देखते हो कि जो एवरी मंथ PMI इज अबव 50 मतलब इकोनॉमिक एक्सपांशन हो रहा है। पॉलिसी डिसीजन में हेल्प करेगा। पॉलिसी डिसीजंस इन केस ऑफ इंडिया, अगर हम RBI के बारे में बोले तो RBI PMI आइडेंटिफाई करके वो एक आउटलुक बनाएगा कि फ्यूचर में आने वाले महीने में कैसा प्रोडक्शन रहेगा, तो उसके हिसाब से इन्फ्लेशन को भी एडजस्ट किया जा सकता है। तो मतलब ये जो RBI के जो मॉनेटरी पॉलिसीज़ है, ये मॉनेटरी पॉलिसीज़ में भी PMI इम्पैक्ट डाल सकता है। और उसके साथ साथ इन्वेस्टर सेंटिमेंट, कि अगर आप अपने आप को एक इन्वेस्टर सोचिए, अगर आप किसी कंट्री का PMI 50 से ऊपर देख रहे हो कंटिन्यूसली एवरी मंथ, तो आपको क्या समझ में आएगा कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो एक्सपांडिंग नेचर में है, वो ग्रो कर रहा है। तो देयर विल बी अ पॉजिटिव इन्वेस्टर सेंटिमेंट। उसके साथ अगर आप देख रहे हो कि कंटिन्यूसली कुछ महीनों से जो PMI है वो 50 से कम है, मतलब जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो शायद कम हो रहा है, तो दैट विल क्रिएट अ नेगेटिव इन्वेस्टर सेंटिमेंट। ऑलराइट, सो हियर इज अ कटआउट फ्रॉम द न्यूज़पेपर कि यहाँ पर आप PMI देख सकते हो कि यहाँ पर अगर आप ज़रा देखिए कि जनवरी 2025 में आपको 57 से भी ज़्यादा PMI देखने को मिला था। फरवरी 2025 में PMI में थोड़ा सा गिरावट आया और मार्च में फिर से 58 पॉइंट रीच किया है। पर जब भी देखिए आप 50 से ऊपर ही था, मतलब कंटिन्यूसली देयर वाज इकोनॉमिक एक्सपांशन हम कह सकते हैं। ऑलराइट, होप PMI is clear. And now the next news is tariff. So it is a topic of GS3 and the topic covered is liberalization of the economy. Liberalization of the economy होगा ये। सो यहाँ पर ये न्यूज़ क्या था, एक्चुअली द हिंदू में एक आर्टिकल आया है आज, द रेसिप्रोकल टैरिफ डिलेमा। एक्चुअली इट इज़ नॉट अ रिसेंट न्यूज़, ये बहुत दिनों से ही ये न्यूज़ आ रहा है और ये हमारे CNA में बहुत बार कवर हो चुका है, तो आपको पता होगा कि ये रेसिप्रोकल टैरिफ क्या है। फिर भी आज मैं आप लोगों को समझाऊंगा। सो बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर आर्टिकल, उस आर्टिकल में क्या कहा गया दैट आई विल एक्सप्लेन टू यू। और इसका रिलीवेंस क्या है, इसका रिलीवेंस अगेन फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस है कि ये रेसिप्रोकल टैरिफ क्या है, ये पूछा जा सकता है आपके एग्जामिनेशन में। MFN टैरिफ क्या है, रिटेलिटरी टैरिफ क्या है। एक्चुअली इस न्यूज़ में हम रेसिप्रोकल टैरिफ को ही ज़्यादा फोकस देंगे, पर फिर भी टैरिफ के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट द अदर टैरिफ एज वेल, जैसे कि MFN टैरिफ और रिटेलिटरी टैरिफ। ठीक है, और मेंस में क्या आ सकता है कि इंडिया और US के बीच जो रिलेशन है, द रिलेशन बिटवीन दिस टू कंट्रीज़, उसका इम्प्लीकेशन ऑन द मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट जो इंडिया और US के बीच है, या फिर द बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड US और WTO RCP का जो मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट है, उसमें क्या इम्पैक्ट आ सकता है, वो मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं। सो इट बिकम्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर बोथ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस।
तो फर्स्ट लेट्स सी रेसिप्रोकल टैरिफ क्या है। देखिए, रेसिप्रोकल टैरिफ ऐसा एक है, सपोज मान लीजिए कि इंडिया, यहाँ पर है इंडिया और यूएस, ठीक है। सो सपोज इंडिया ने कुछ ऐसे रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस, कि जब भी यूएस से कोई गुड्स आएगा तो कुछ कुछ बैरियर इंडिया यहाँ पर लगाएगा, तो वो नॉन रेसिप्रोकल होगा। नॉन रेसिप्रोकल मतलब कि पहली बार जो टैरिफ, जो रेस्ट्रिक्शंस लगा रहा है, कि मतलब कोई एक्शन से रिएक्शन नहीं, कि मान लीजिए यूएसए ने कुछ नहीं किया और इंडिया यूएस गुड्स के ऊपर इंडिया ने कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, दैट कैन बी टैरिफ रेस्ट्रिक्शंस एज वेल एज नॉन टैरिफ रेस्ट्रिक्शंस। मैं आपको बोल दूँ कि टैरिफ रेस्ट्रिक्शंस, मैं यहाँ पर टीआर लिख रहा हूँ, टैरिफ रेस्ट्रिक्शंस का मतलब है जब इंपोर्ट ड्यूटी को इंक्रीज करके जो ट्रेड को रेस्ट्रिक्ट किया जाता है, दैट इज टैरिफ रेस्ट्रिक्शंस। और एनटीआर मतलब नॉन टैरिफ रेस्ट्रिक्शन का को छोड़ के, अगर मतलब इंपोर्ट ड्यूटी को छोड़ के बाकी अदर रेस्ट्रिक्शंस, वो सैनिटरी फाइटो सैनिटरी रेस्ट्रिक्शंस, मतलब कि हेल्थ कंसर्न को लेकर रेस्ट्रिक्शंस, या फिर प्लांट हेल्थ कंसर्न को लेकर रेस्ट्रिक्शंस, बैक्टीरियल कॉन्टेमिनेंट लेके रेस्ट्रिक्शंस, वो अलग अलग तरह के, या फिर पैकेजिंग रिक्वायरमेंट्स लगा के रेस्ट्रिक्शंस, या फिर डिफरेंट अदर टाइप ऑफ रेस्ट्रिक्शंस दे के अगर इंपोर्ट को रेस्ट्रिक्ट किया जाए, उसको नॉन रेसिप्रोकल टैरिफ बोला जाएगा, नॉन रेसिप्रोकल टैरिफ। तो यूएसए कुछ डिफरेंट अदर कंट्रीज ने जो नॉन रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है, ठीक है, और उसको ही काउंटर करने के लिए यूएस ने क्या किया, रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है, ठीक है। रेसिप्रोकल टैरिफ ये कोई वार टाइप नहीं है कि ठीक है भाई, तुम अगर हमारे गुड्स अगर तुम्हारे कंट्री में हम भेजे, तो अगर तुम वहाँ इंपोर्ट ड्यूटी ज़्यादा लगा रहे हो तो उसको ही काउंटर करके हम भी ज़्यादा इंपोर्ट ड्यूटी लगाएंगे। कि देखिए, इसको हम ऐसे और एक एग्जांपल से समझते हैं, ज़्यादा क्लियर होगा, कि यूएस और इंडिया, कि यूएस ने कोई एक सामान, यूएस इंडिया में एक सामान भेजता है तो वो $10 का है, और इंडिया कोई एक सामान भेजता है जिसका दाम है मान लो $20, तो इंडिया यूएस के ऊपर लगाता है मान लो $1 टैरिफ, तो ये हो जाएगा $11। तो यूएस भी कुछ टैरिफ लगाता था। इंडिया ने क्या किया कि भाई ट्रेड को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए लेट्स इंडिया मेड इट $5। तो यूएसए देखिएगा, ठीक है, तुमने $5 प्राइस इंक्रीज किया, तो हम भी यहाँ पर $5 प्राइस इंक्रीज कर देंगे। तो ये है रेसिप्रोकल टैरिफ। टैरिफ का मतलब है इंपोर्ट ड्यूटी। समझ लीजिए कि यहाँ पर लिखा है, देखिए, अ ट्रेड पॉलिसी वेयर अ कंट्री इम्पोजेस टैरिफ इक्वल टू और प्रोपोर्शनल टू द टैरिफ इम्पोज्ड बाय इट्स ट्रेडिंग पार्टनर। मतलब इंडिया यूएसए ट्रेडिंग पार्टनर है, अगर इंडिया ने $5 अगर टैरिफ लगाया है तो यूएसए भी $5 टैरिफ लगाएगा, ठीक है। तो ये यूएस ने क्यों किया है, इमीडिएटली नहीं किया, बट जब ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में फिर से आए हैं, उन्होंने फिर से ये किया, क्योंकि उन्होंने नोटिस किया जो उनके जो ट्रेड बैलेंसेस है उसमें थोड़ा सा उतार चढ़ाव आ रहा है, कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प, ही वाज कंसर्न्ड विद द ट्रेड डेफिसिट दैट वाज गेटिंग क्रिएटेड विद सम कंट्रीज लाइक इंडिया, चाइना, यूरोपियन यूनियन, कनाडा एंड मेक्सिको। इनके साथ जो ट्रेड डेफिसिट का मतलब क्या है, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। मतलब एक कंट्री का जब इम्पोर्ट ज़्यादा होगा एक्सपोर्ट से, तब वो क्रिएट करेगा ट्रेड डेफिसिट। तो ट्रम्प जो है वो इसी को लेके टेंशन में है कि इन सब कंट्रीज़ के बीच यूएसए के साथ उनका ट्रेड डेफिसिट दिन ब दिन बढ़ रहा है, इसकी वजह से उन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है। सो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया, उनका जो प्लान है ये फेयर एंड रेसिप्रोकल प्लान है। क्या प्लान है कि टू काउंटर द नॉन रेसिप्रोकल ट्रेडिंग अरेंजमेंट बाय इम्पोजिंग रेसिप्रोकल टैरिफ। यही बोला कि ये सब कंट्री ने जब पहले नॉन रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया था तब, और अब यूएस क्या करेगा, उसी को रेसिप्रोकेट करके वो भी टैरिफ लगाएगा, ठीक है। तो इट इवेलुएट्स मार्केट एक्सेस रेस्ट्रिक्शन सच एज सब्सिडीज, रेगुलेशन, एक्सचेंज रेट मैनिपुलेशन। मतलब दीज आर द नॉन रेसिप्रोकल ट्रेडिंग अरेंजमेंट, कि कुछ कंट्री सब्सिडी दे देता है, कि मान लो कि इंडिया 10 रुपये का जो
₹20 का जो ये प्रोडक्ट है, इंडियन गवर्नमेंट उसको सब्सिडाइज करके मान लो ₹15 करके दे रहा है, ₹15 करके दे रहा है। तो ₹15 में जब ये यूएस में जाएगा तो कम दाम में इंडियन गुड्स खरीद पाएंगे यूएसए के लोग, तो इंडियन गुड्स का डिमांड ज़्यादा होगा यूएस में। तो यूएस को यही टेंशन है कि अमेरिका का गुड्स अमेरिकन लोग ज़्यादा खरीदें, ना कि डिफरेंट कंट्री का गुड। तो इसी की वजह से रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया गया है। ठीक है, अभी तो रेसिप्रोकल टैरिफ आप लोगों को समझ में आया है। आई होप यू ऑल आर नाउ ऑल्सो ईगर कि ये MFN टैरिफ क्या है या फिर रिटेलिएटरी टैरिफ क्या है। चलिए इसको हम समझते हैं। MFN का फुल फॉर्म है मोस्ट फेवर्ड नेशन। मोस्ट फेवर्ड नेशन, एक्चुअली इट इज़ वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द WTO। WTO MFN के अंदर क्या कहता है कि कोई भी कंट्री को कोई दूसरा कंट्री पर्टिकुलरली फेवर नहीं देना है। एक कंट्री अगर दूसरे कंट्री को अगर फेवर दे रहा है तो वो सबके लिए होना चाहिए। दैट इज मोस्ट फेवर्ड नेशन, कि ज़्यादा से ज़्यादा नेशन को फेवर किया जाएगा, नहीं कि सिलेक्टिवली। ठीक है, तो WTO के मोस्ट फेवर्ड नेशन के अंदर कंट्रीज के बीच जो टैरिफ सेट होगा WTO के अंदर, उसी को कहा जाएगा मोस्ट फेवर्ड नेशन टैरिफ, MFN टैरिफ। लेट मी रिपीट कि WTO के अंदर मोस्ट फेवर्ड नेशन मतलब सबके लिए जो टैरिफ सेट किया जाएगा उसी को कहा जाएगा MFN टैरिफ। नेक्स्ट जो मैंने मेंशन किया है वो है रिटेलिएटरी टैरिफ। रिटेलिएटरी टैरिफ क्या है कि मान लो अभी यूएस ने रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिया, यूएसए ने रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया, तो मान लो अभी इंडिया को आया गुस्सा और इंडिया बोला ठीक है यूएसए तुम टैरिफ लगा रहे हो ना, तुमने रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है, अभी हम भी तुमसे ज़्यादा टैरिफ लगा देंगे। इंडिया अगर अभी ज़्यादा टैरिफ लगा दे तो उसको कहा जाएगा रिटेलिएटरी टैरिफ, मतलब रिटेलिएट किया है इंडिया ने। तो अभी आप कंफ्यूज मत होना कि रेसिप्रोकल टैरिफ भी तो वही है, क्योंकि इंडिया ने पहले कुछ नॉन टैरिफ अरेंजमेंट किए थे या फिर टैरिफ अरेंजमेंट ही किया था। हाँ, वो तो इंडिया ने फर्स्ट टाइम किया था कि भाई हम क्या करेंगे, इंपोर्ट को रोकने के लिए हम थोड़ा बहुत टैरिफ लगा देंगे, वो इंडिया का फर्स्ट टाइम है। तो यूएसए ने उसको रिटेलिएट नहीं किया कि रेसिप्रोकेट किया है, तुम अगर ₹10 ज़्यादा लोगे तो हम भी ₹10 ज़्यादा लेंगे। उसी को देखकर अगर अभी कोई रिटेलिएट करता है, रेस्पॉन्ड करता है, तो उसको बोला जाएगा रिटेलिएटरी टैरिफ। ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट योर रेसिप्रोकल टैरिफ। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड। एंड अगर कुछ कन्फ्यूजन है आपको कोई भी टॉपिक को लेकर, कमेंट सेक्शन इज ओपन in our channel. In this video you write whatever you want to tell us. Next is railway projects in Assam. So this is a news article from the Assam Tribune. ये असम ट्रिब्यून में आया है। मैं नहीं कहूँगा इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट स्टिल आया है, रेलवे प्रोजेक्ट रिलेटेड है, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो कवर्ड इन आवर सिलेबस, दैट इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो रेलवेज। ठीक है, तो ये हमें जानना होगा। हम इस पर्टिकुलर सेशन में हम क्या जानेंगे, हम देखेंगे कि व्हाट आर द रूट्स दैट हैज़ बीन प्रपोज्ड फॉर द न्यू रेलवे प्रोजेक्ट्स। तो जो कि न्यूज़ था वो है 6 रेलवे प्रोजेक्ट्स अंडर इम्प्लीमेंटेशन इन असम, दैट इज़ कवर्ड इन असम ट्रिब्यून। ठीक है, 6 रेलवे प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया गया है असम में, उसी के बारे में हम देखेंगे। तो प्रीलिम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर हम कुछ प्लेसेस के नाम जिक्र करेंगे, उसके साथ रेलवेज डेवलपमेंट के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है मेंस पर्सपेक्टिव से। देखिए, जो 6 रूट यहाँ पर बोला गया है, इट इज़ mentioned in the parliament by the railway minister, current railway minister, that is Ashwini Vaishnav। उन्होंने बोला है कि द फर्स्ट वन मुरकोंग सेलेक से पासीघाट तक एक न्यू लाइन होगा। तो मुरकोंग सेलेक कहाँ है? मुरकोंग सेलेक इज एक्चुअली इन द धेमाजी डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम, धेमाजी डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम। और या फिर आप ये भी कह सकते हो इट इज़ द बॉर्डर, इन द बॉर्डर ऑफ असम एंड अरुणाचल। सो पासीघाट इज इन अरुणाचल। Next line is from Tetilia to Barnihat, which is also a new line that will be of 21.5 किलोमीटर। ये किलोमीटर आप लोगों को याद नहीं रखना है, पर ये लाइन थोड़ा सा आप देख लीजिए। स्पेशली ये मुरकोंग सेलेक से पासीघाट तक का लाइन, न्यू बोंगाईगांव ग्वालपारा कामाख्या में ट्रैक डबलिंग होगा। न्यू बोंगाईगांव ग्वालपारा और कामाख्या ट्रैक में ट्रैक डबलिंग, ये न्यू लाइन नहीं है, ये ट्रैक डबल ट्रैक होगा।
कि अगर जहाँ पर सिंगल ट्रैक है वहाँ पर और एक ट्रैक किया जाएगा, डबल लाइन। और लम्बरिंग से फरकटिंग तक वहाँ पर भी ट्रैक डबलिंग होगा, जस्ट लाइक दिस। कामाख्या गुवाहाटी, कामाख्या से गुवाहाटी तक ऑलरेडी देर इज अ डबल लाइन, नाउ दे विल कंस्ट्रक्ट अनदर वन दैट विल बी अ थर्ड line which is of 5.44 kilometer, and the last project that has been proposed is Agthori to Kamakhya station, including a new rail cum road bridge at Saraighat. So this is it is very important to note here कि including a new rail cum road bridge at Saraighat, कि over the Brahmaputra river at Saraighat there will be another rail cum road bridge. Already there exists one rail cum road bridge and another only road bridge, so there will be another rail cum road bridge which will connect Agathori to Kamakhya, a new line. All right, so this is about your the railway projects in Assam that is proposed by Shri Vaishnav, Ashwini Vaishnav. Next is your project Netra. This is a topic covered GS3 of Science and Technology. So what is the news कि this news has been taken from Assam Tribune कि असम में चंद्रपुर में इसरो चीफ प्रोजेक्ट नेत्र के लिए साइट विजिट के लिए आए थे, जहां पर एक रेडार ऑपरेशनल किया जाएगा बाय दिस फिनेंशियल ईयर। दैट वाज द न्यूज़। सो हम इसमें क्या जानेंगे कि व्हाट इज नेत्र, अबाउट स्पेस सिक्योरिटी, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, और मेंस पर्सपेक्टिव से ग्लोबल स्पेस अरेंजमेंट्स और डिफरेंट अदर ट्रीटीज। ओके, सो लेट्स सी प्रोजेक्ट नेत्र। दिस नेत्र स्टैंड्स फॉर नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एनालिसिस। नेत्र का मतलब क्या है? नेत्र का मतलब है आईज, आँख, तो मतलब ऑब्जर्वेशन। सो किस चीज़ का ऑब्जर्वेशन? सो अगर आप यहाँ पर ये पिक्चर अगर आप देखते हो, यू विल लुक इन द सेंटर, कि जो ये सेंटर है ये पृथ्वी है, ये दिस इज़ आवर अर्थ, और जो स्कैटर्ड कुछ है यहाँ पर, आपको शायद लग रहा होगा कि दीज आर स्टार्स, बट दे आर नॉट स्टार्स, बट दे आर रिजेंबलिंग द स्पेस डेब्री। दीज आर द स्पेस डेब्री। डेब्री का मतलब क्या है? दीज आर द वेस्ट ऑफ स्पेस, लाइक इट कैन बी asteroids, meteorites, or also along with that, specially these are the remains of the used satellites or any other launch vehicles or etc. जो भी सैटेलाइट, जो भी अर्थ के ऑर्बिट एटमॉस्फेयर के बाहर चला गया है, ऑर्बिटिंग में था, जिसका काम ख़त्म हो गया है, तो वो जो है डेब्री बन जाता है, कोई काम नहीं आता है वो। सो उसी को ट्रैक करने के लिए या फिर एक अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाने के लिए, जो स्पेस डेब्री है, नेचुरल स्पेस डेब्री हो या फिर आर्टिफिशियल स्पेस डेब्री हो, उससे अर्थ को खतरा ना हो, उसके लिए एक वार्निंग सिस्टम डेवलप किया जा रहा है, जिसका नाम दिया गया है नेत्र। क्या है? नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस सिस्टम, कि अर्थ के आसपास में जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा उसको ट्रैक और एनालिसिस किया जाएगा। ठीक है, सो ये नेत्र इंपॉर्टेंट क्यों है? वाई दिस नेत्र इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज द फर्स्ट वन जस्ट नाउ आई हैव टोल्ड यू कि इट इज अबाउट द स्पेस जंक थ्रेड्स, बिकॉज डे बाय डे व्हाट इज हैपनिंग, increase the number of space debris are increasing, which actually poses a risk to active satellite, कि जो एक्टिव सैटेलाइट है उनके लिए खतरा है। कि मान लो नासा ने एक सैटेलाइट भेजा था बहुत साल पहले, वो अभी आउट ऑफ ऑर्डर हो गया, तो वो एक डेब्री बन चुका है। या फिर कोई मीटेराइट है एटमॉस्फेयर के बाहर अर्थ के ऑर्बिट में, तो इसरो जब एक सैटेलाइट भेजेगा तो वो जो डेब्री है, कि मान लो यहाँ पर एक सैटेलाइट है और यहाँ पर कोई एक डेब्री है, तो वो डेब्री के साथ अगर वो सैटेलाइट कोलाइड होगा तो सारा रिसोर्सेज बर्बाद, तो वो जो सैटेलाइट है वो नष्ट हो जाएगा। तो दैट इज़ अ स्पेस जंक थ्रेट्स। नेक्स्ट इज़ ऑटोनोमस स्पेस मॉनिटरिंग, कि आज के डेट में अगर आप देखो कि इंडिया का खुद का ऑटोनोमस स्पेस मॉनिटरिंग नहीं है। इंडिया इज़ डिपेंडेंट ऑन ग्लोबल डेटा, कि जो वो नासा का जो है, नासा का यूएसए का जो है वो है स्पेस सर्विलियंस नेटवर्क, SSN। यूएस का जो प्रोजेक्ट है उसका नाम है SSN, स्पेस सर्विलियंस नेटवर्क। तो वो जो डेटा देगा, अकॉर्डिंगली
इसरो उसके डेटा के हिसाब से काम करेगा। तो अगर अपना ही खुद एक ऑटोनोमस स्पेस मॉनिटरिंग हो जाए तो वो सबसे बेहतर होगा। सो दैट इज़ ऑटोनोमस स्पेस मॉनिटरिंग। उसके साथ मिलिट्री एंड स्ट्रेटेजिक यूज़ के लिए भी नेत्र काम में आएगा, क्योंकि इट विल हेल्प इन मॉनिटरिंग द एनिमी सैटेलाइट। अगर हमारा कोई कंट्री, मान लो कि पाकिस्तान ने अगर कोई सैटेलाइट भेजा है, कोई स्पेस बेस्ड एक्टिविटीज़ वो कर रहे हैं, तो हमारा रिलेशन पाकिस्तान के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो उनके एक्टिविटी को भी हम इंडिया से ट्रैक कर पाएंगे। उसके साथ साथ दिस प्रोजेक्ट नेत्र विल ऑल्सो सपोर्ट द फ्यूचर मिशन। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ हाउ डज नेत्र वर्क, ये नेत्र कैसे काम करेगा? द फर्स्ट की यूजेस अ नेटवर्क ऑफ रेडार। ठीक है, ये एक रेडार जो है, रेडर नेटवर्क से वो काम करेगा। टेलीस्कोप्स होगा, ऑब्जर्वेटरी में टेलीस्कोप्स होंगे, डेटा प्रोसेसिंग यूनिट्स और कंट्रोल सेंटर्स। तो यही कंट्रोल सेंटर, डेटा प्रोसेसिंग यूनिट्स या फिर ऑब्जर्वेटरी बनाने के लिए इंडिया में इसरो साइट विजिट कर रहे हैं। तो ये डिसाइड हुआ है दैट इंडिया में, असम में, चंद्रपुर में अराउंड 200 बीघाज in Chandrapur, Assam, around 200 बीघाज of land will be used for this project. ठीक है, इट विल ट्रैक स्मॉल ऑब्जेक्ट्स एज 10 सेंटीमीटर इन स्पेस। स्पेस में अगर 10 सेंटीमीटर छोटा कोई एक ऑब्जेक्ट होगा, उसको भी ये आँख नेत्र ट्रैक करेगा एट अ डिस्टेंस अप टू 3000 किलोमीटर। integrates with ISRO's multi-object tracking radar and existing space surveillance system, कि जो इसरो का जो मल्टी ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग रडार है और जो भी एग्जिस्टिंग स्पेस सर्विलेंस सिस्टम है करेंटली, उसको इंटीग्रेट करके ये प्रोजेक्ट नेत्र किया जाएगा। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल अबाउट प्रोजेक्ट नेत्र। नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ GS2 दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन टूडेज न्यूज़पेपर। स्पीकर कांट बी इनडिसाइसिव। ऑलराइट, अच्छे से पढ़ लीजिए ये न्यूज़ क्या है कि द सुप्रीम कोर्ट ने वेडनेसडे में कहा है कि दिस लास्ट वेडनेसडे सुप्रीम कोर्ट हैज सेड दैट इट वाज नॉट पावरलेस इफ अ स्पीकर चूज टू रिमेन इनडिसाइसिव ऑन पिटिशन सीकिंग डिसक्वालिफिकेशन ऑफ लेजिस्लेचर्स हु डिफेक्ट। मतलब जो क्या न्यूज़ था ये कि तेलंगाना असेंबली में, द बैकग्राउंड इज इन द तेलंगाना असेंबली 10 एमएलए को के अंदर एंटी डिफेक्शन लागू हुआ है। तो एंटी डिफेक्शन के अंदर स्पीकर को डिसाइड करना है कि उनको डिस्क्वालीफाई करना है कि नहीं करना है। तो वो डिसीशन स्पीकर ने होल्ड करके रखा है, टाइमली डिसीजन अभी भी नहीं दिया है। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया है और बोला है कि स्पीकर को डिसीजन देने के लिए। दैट वाज द न्यूज़। तो यहाँ पर क्या रिलेवेंट है इस न्यूज़ से कि ऑब्वियसली इट इज़ वेरी श्योर शॉर्ट कि ये पॉलिटिका टॉपिक है। तो यहाँ पर पावर ऑफ स्पीकर आपको पढ़ना है, सुप्रीम कोर्ट पढ़ना है, एंटी डिफेक्शन लॉ पढ़ना है, विच इज़ इंपॉर्टेंट फॉर बोथ मेंस एंड प्रीलिम्स। ऑलराइट, सो अगर हम यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट देख ले तो जो मैंने अभी बोला है कि द सुप्रीम कोर्ट लेड बाय जस्टिस BR गवाई ही क्रिटिसाइज द तेलंगाना स्पीकर फॉर डिलेइंग द डिसक्वालिफिकेशन। ये जो 10 एमएलए है उनका जो डिसक्वालिफिकेशन है उनमें अभी भी वो डिले कर रहे हैं। हु जॉइन कांग्रेस स्टेटिंग इंडिसीजन कैन नॉट अंडरमाइन द एंटी डिफेक्शन लॉ, कि मतलब जो स्पीकर अगर डिसीजन नहीं दे रहा है वो एंटी डिफेक्शन लॉ को अंडरमाइन कर रहा है, तो स्पीकर को डिसीजन देना चाहिए। पर यहाँ पर बात है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है, क्या सुप्रीम कोर्ट स्पीकर को बोल सकता है कि आप डिसीजन दो। तो इन दिस कॉन्टेक्स्ट अगर हम स्पीकर के पावर अगर हम देखें, स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की, हमने पॉलिटी पढ़ा है तो हमें पता है कि स्पीकर का पावर और फंक्शन क्या है। प्रिसाइडिंग ओवर सेशन, कि जो सेशन होगा उस सेशन को वो प्रिसाइड करेंगे और लीड करेंगे। ही हैव सम डिस्क्रिशनरी पावर, ही हैज़ अ कास्टिंग वोट इन केस ऑफ टाई। अगर किसी डिसीजन में अगर टाई होता है, स्पीकर के पास एक कास्टिंग वोट होता है। वो कमिटी अपॉइंट करते हैं, सिक्योरिटी ऑफ हाउस के लिए उनका रोल माना जाता है। उसके साथ साथ ही हैज़ टू abide himself with the anti defection law as well.
एंटी डिफेक्शन लॉ हम देखते हैं साथ साथ। व्हाट डू यू मीन बाय एंटी डिफेक्शन लॉ? दिस एंटी डिफेक्शन लॉ इज अंडर 10th schedule which is added by the 52nd constitutional amendment in 1985. सो ये एंटी डिफेक्शन लॉ क्या कहता है? ये एंटी डिफेक्शन लॉ कहता है कि इट सर्व्स एज द ग्राउंड्स फॉर डिसक्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज या फिर एमएलएज, डिसक्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज और एमएलएज। तो डिसक्वालिफिकेशन मतलब अपने पार्टी से निकाल देना, ठीक है, या फिर मेंबरशिप से पार्लियामेंट हो या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबरशिप से उनको निकाल देना। कब निकाला जा सकता है? जब एक लेजिस्लेटर कैन बी डिस्क्वालिफाइड इफ दे वॉलेंटरीली गिव अप मेंबरशिप। अगर वो एमपी या फिर एमएलए वॉलेंटरीली अपना मेंबरशिप गिव अप कर दे। उसके साथ वोट और एब्सटेन फॉर वोटिंग अगेंस्ट द पार्टीज डायरेक्शन। अगर पार्टी ने बोला है किसी एक एजेंडा में वोट करने के लिए, अगर वो वोट नहीं करता है उस ग्राउंड में भी डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है। और जॉइन अनदर पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर बीइंग इलेक्टेड एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। अगर आप एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हो, अगर आप अगर जीते हो इन द इलेक्शन और अगर आप पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करते हो तब भी आपका डिस्क्वालिफिकेशन होगा। और जॉइन अ पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर बीइंग नॉमिनेटेड विद इन 6 months ऑफ नॉमिनेशन। एक पॉलिटिकल पार्टी जॉइन अ पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर बीइंग नॉमिनेटेड। जब पार्लियामेंट में नॉमिनेट किया जाएगा, अगर आप 6 महीने के अंदर अगर पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करते हो तब डिस्क्वालीफाई का ग्राउंड बनता है, ठीक है। यहाँ पर अगर एससी का कमेंट आप देखते हो तो एससी ने क्या बोला है? सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि कोर्ट यहाँ पर क्या डिसीजन लेना है वो नहीं बताएगा। कोर्ट विल से कि भाई आप जो हो, आप एक स्पेसिफाइड पीरियड के अंदर डिसीजन लो। यू हैव टू टेक डिसीजन विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड। सो कोर्ट्स कैनॉट सर्टेनली टेक अ स्पीकर टेल अ स्पीकर टू डिसाइड। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्पीकर को क्या डिसीजन लेना है वो हम नहीं बोलेंगे, वो स्पीकर खुद ही डिसीजन करेगा कि डिस्क्वालिफिकेशन करना है कि नहीं करना है। वो आपका राइट है इन अ पर्टिकुलर मैटर और मैनर। बट सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि हम स्पीकर को ये तो बोल सकते ना कि टाइमली डिसीजन लो, ठीक है। तो वो बोले कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स भी क्रिएट किए जाएंगे तो जो स्पीकर को ऑर्डर करेगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, दीज आर क्वासी जुडिशियल ट्राइब्यूनल, दे एक्ट एज अ क्वासी जुडिशियल ट्राइब्यूनल अंडर द 10th schedule एंटी डिफेक्शन लॉ to render decision on petitions submitted to them under the 10th schedule within a given time frame। मतलब वही है जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स है वो स्पीकर को डायरेक्ट करेंगे कि डिसीजन आप टाइमली लो, पर क्या डिसीजन लेना है वो आप खुद लो। यहाँ पर आर्ग्यू करके जो सीनियर एडवोकेट है, सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी, उन्होंने कहा है सुप्रीम कोर्ट में कि सुप्रीम कोर्ट का जो पावर है कि सुप्रीम कोर्ट एक ट्राइब्यूनल से वो मैटर दूसरे ट्राइब्यूनल में दे सकता है, ना कि स्पीकर को कोई भी डिसीजन लेने के लिए वो मजबूर कर सकता है, ठीक है। सो दिस वॉज हाउ अ स्पीकर कैन नॉट बी इंडिसाइसिव। दिस इज़ नॉट अ वेरी कॉम्प्लेक्स टॉपिक, इट इज़ वेरी ईजी न्यूज़ की सिंपल कि एक स्पीकर को टाइमली डिसीजन लेना है, बस उसी में सुप्रीम कोर्ट ने अपना मैटर रखा है। फाइन। सो द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ अगेन GS2 इज डिजिटल चाइल्ड अब्यूज। अगेन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्पेशली वेरी स्पेशली फॉर योर मेंस पर्सपेक्टिव। प्रीलिम्स के लिए उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना भी हो, फिर भी मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड अब्यूज। देखिए यहाँ पर 2 टर्म है, एक है यूज, एक है मिसयूज और एक है अब्यूज। यूज का मतलब है व्यवहार करना, ओके, टू यूज समथिंग। मिसयूज का मतलब है जब आप एक चीज़ को जैसे यूज करना है आपने वैसे यूज नहीं किया, यू मिसयूज इट, गलत तरीके से आपने इसको यूज किया। अब्यूज का मतलब है आपने एक चीज़ को ऐसे यूज किया है टू हार्म समवन और टू हार्म योरसेल्फ। लेट मी रिपीट इट कि किसी भी चीज़ को अगर आप यूटिलाइज कर रहे हो, काम कर रहे हो, तो आप यूज़ कर रहे हो। अगर उस काम को आप गलत तरीके से कर रहे हो तो वो होगा मिसयूज। अगर गलत तरीके से
किया गया काम अगर आपको खुद को या फिर दूसरों को हार्म कर रहा है तो उसको कहा जाएगा एब्यूज़। तो यहाँ पर डिजिटल चाइल्ड एब्यूज़ मतलब यहाँ पर तो चाइल्ड एब्यूज़ हमें समझ में आया कि बच्चों के साथ कुछ गलत करना, और कैसे करना, डिजिटली करना। शायद आपको इस हेडिंग से मालूम चल गया है कि ये रिलेटेड टू व्हाट, इट इज़ रिलेटेड टू द डेंजर ऑफ एआई बेस्ड एक्सप्लॉयटेशन, कि बच्चों के साथ जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा जो एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है उसकी वजह से है। जैसे कि रिसेंटली आज के डेट में अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करके हम घिबली इमेजेस बना रहे, शायद आपने भी बनाया होगा, मैंने भी बनाया था घिबली इमेजेस, स्पेलिंग थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, घिबली, यस दिस इज द स्पेलिंग, घिबली इमेजेस जो हम बना रहे बाय यूजिंग द एआई, वैसे ही एआई को यूज़ करके ऐसे ऐसे ऑब्जेक्शनेबल पिक्चर्स बनाए जाते हैं विच इज़ वेरी वेरी हार्मफुल फॉर अ चाइल्ड। ऑलराइट, सो रिपोर्ट है, इंटरनेशनल कुछ रिपोर्ट्स है जैसे कि द एआई सेफ्टी रिपोर्ट 2025, उस रिपोर्ट में कहा गया है कि इट इज़ हाईलाइटिंग द रिस्क ऑफ एआई जनरेटेड चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज़ मटेरियल, चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज़ मटेरियल CSAM, कि एआई जनरेट करके चाइल्ड बच्चों के कुछ ऐसे ऑब्सीन पिक्चर बनाए जाते हैं विच इज़ सेक्सुअली एक्सप्लिसिट इंक्लूडिंग इट्स क्रिएशन, पोजेशन एंड स्प्रेड, बनाया भी जाता है, पोजेस रखा भी जाता है और उसके साथ सोशल मीडिया में स्प्रेड भी किया जाता है। तो उसके लिए यूके, यूनाइटेड किंगडम, इट विल इंट्रोड्यूस अ लेजिस्लेशन कि कैसे एआई जनरेटेड CSAM थ्रेट को कंट्रोल किया जाए या फिर उसको बंद किया जाए। उसके साथ साथ 2023 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने भी वार्न किया था कि जो एआई का जो एबिलिटी है, इट्स एबिलिटी इज ट्रिमेंडस, ये कुछ भी कर सकता है, लाइक दिस काइंड ऑफ एब्यूज़। उसके साथ इंटरनेट वॉच फाउंडेशन अक्टूबर 2024 में सेम चीज़ ही बोला। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें कि यस दिस इज़ वेरी ट्रू कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जो साइबर क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन है वो 2022 के बाद से बहुत ज़्यादा शार्पली इंक्रीज हुआ है। और इफ़ यू नो दैट 2022 इट इज़ द ईयर ऑफ एआई रिवॉल्यूशन, और हम अभी एआई रिवॉल्यूशन में है। NCRP under CCPWC scheme recorded 1.94 lakh child pornography incidents. Child pornography is a criminal offense in India. It is banned in India. NCRB partnered with NCMEC USA in 2019 and received CSAM tip line reports, which has been shared 69.09 lakh report shared with states and UTs by March 2024. तो ये सब डेटा है वो शेयर किया गया है। ऑलराइट, तो रिसेंट डेवलपमेंट अगर हम देखते हैं, द रिसेंट डेवलपमेंट इज़ कि यूके, जो मैंने ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू दैट यूके इज़ कमिंग विद अ न्यू लॉ विच will criminalize the possession, creation and distribution of such kind of obscene material. उसके साथ यूके ने जो बोला है कि अभी जो फोकस है वो एक्यूज्ड सेंट्रिक नहीं होगा कि कौन दोषी है, हमें वो निकालना नहीं है, वी हैव टू बी एक्ट सेंट्रिक कि कैसे उस चीज़ को कम किया जाए। ऐसा नहीं क्राइम हो गया, इट इज़ अ क्राइम, आई विल कंसिडर इट एज अ क्राइम, कि वो क्राइम होने के बाद किसने क्राइम किया है वो पकड़ने का हमारा क्या बोलते हैं उसको, ऑब्जेक्टिव नहीं होना है, उस क्राइम को ना होने देना ऑब्जेक्टिव है कि द फोकस मस्ट शिफ्ट फ्रॉम एक्यूज्ड सेंट्रिक टू एक्ट सेंट्रिक। ऑलराइट, तो यहाँ पर कुछ करंट लॉज भी है, ये आप यहाँ से देख सकते हो, पढ़ सकते हो। अगर हम इंडिया के बारे में बात करें, इंडिया में चाइल्ड रिलेटेड क्या एक्ट है, जैसे अगर हम बोले द IT एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, विच वहाँ पर भी एक प्रोविज़न है सेक्शन 67B। सेक्शन 67B में अगर आप देखते हो, सेक्शन याद नहीं करना है, जस्ट मेरे पास इंफॉर्मेशन है सो आई एम गिविंग इट टू यू। सेक्शन 67B इट पनिशेज इलेक्ट्रॉनिक पब्लिकेशन और ट्रांसमिशन ऑफ CSM, कि अगर कोई इंसान अगर उसको ट्रांसमिट करता है, इलेक्ट्रॉनिकली पब्लिश करता है ऐसे ऑब्सीन मटेरियल ऑफ अ चाइल्ड, तो उसको पनिश किया जाएगा। सिमिलरली अंडर द पॉक्सो एक्ट इट प्रोहिबिट्स चाइल्ड पोर्नोग्राफी, स्टोरेज एंड यूज ऑफ चिल्ड्रन फॉर सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन। याद रखिएगा, नंबर 1 कि इट प्रोहिबिट्स चाइल्ड पोर्नोग्राफी
Number 2, child pornography storage. And number 3, use of children for sexual gratification. So these are certain laws in India which is in effect. ऑल्सो अगर आप BNS को देखते हो, BNS का मतलब है भारतीय न्याय संहिता, दैट हैज़ बीन रिसेंटली अपडेटेड फ्रॉम द IPC. अभी हम BNS बोलते हैं, IPC नहीं. तो वहाँ पर भी पेनलाइज किया गया है अगर कोई ऑब्सीन मटेरियल को डिस्ट्रीब्यूट करता है, सेल करता है, या फिर उसको क्रिमिनलाइज भी किया जाता है, उसके साथ पेनलाइज प्लस क्रिमिनलाइज. पर अभी भी क्या है, और भी ज़्यादा इम्प्रूव करने लायक है कि जैसे कि यहाँ पर कुछ की प्लान ऑफ एक्शन दिया गया है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी को रिप्लेस करना चाहिए विथ CSAM. चाइल्ड पोर्नोग्राफी इज एक्चुअली रिलेटेड टू द वीडियो. CSAM is any kind of generated image. Child pornography is not AI related. That is a real thing. CSM can be an artificial thing, but that is also obscene. डिफाइंड सेक्सुअली एक्सप्लिसिट. सेक्शन 67B जो है उसके अंडर सेक्सुअली एक्सप्लिसिट का मतलब उसको डिफाइन करना चाहिए और उस डेफिनेशन में CSAM को इंक्लूड करना चाहिए. उसके साथ जो एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशन है उनको भी अपडेट करना है विच विल एड्रेस द थ्रेट पोज्ड बाय AI एंड अदर इवॉल्विंग टेक्नोलॉजीज. आने वाले जो टेक्नोलॉजीज है वहाँ पर भी काम किया जाएगा. Okay, so the next news is BIMSTEC Summit. It is a topic covered under GS2 in India and its bilateral India and its neighborhood relation. उसके साथ और एक टॉपिक के अंदर भी आएगा वो bilateral regional and global groupings and agreement involving India. ठीक है, यहाँ पर affecting India तो नहीं होगा क्योंकि BIMSTEC में डायरेक्टली India it is a member. So न्यूज़ क्या है? न्यूज़ ये है कि in the upcoming days ahead of the 6th summit, बिम्स्टेक समिट जो बैंकॉक में होने वाला है, वहाँ पर लोगों का नज़र है ऑन नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश चीफ एडवाइज़र प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के ऊपर. क्या वो दोनों मिलेंगे बैंकॉक में या नहीं मिलेंगे, क्या वो बात करेंगे या फिर नहीं करेंगे. ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि हाल ही में इंडिया और बांग्लादेश का रिलेशन कुछ खास नहीं है. इंडिया से भी बांग्लादेश को लेकर, मतलब बांग्लादेश में माइनॉरिटी हिंदूज़ को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन है. इंडिया वांट्स टू सपोर्ट देयर माइनॉरिटी, बट बांग्लादेश ने कहा है कि वो बांग्लादेश का इंटरनल मैटर है, इंडिया को उसमें इंटरफेयर करने के लिए मना किया गया है. तो शायद उस बिम्स्टेक समिट में वो इशू उठाया जा सकता है या फिर नहीं. तो देखते हैं क्या है. सो बिम्स्टेक समिट क्या है? बिम्स्टेक जो है कि इट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन जून 6, 1997 थ्रू द बैंकॉक डिक्लेरेशन. पहले ये बिस्टेक था या फिर बिस्ट ईसी था, मतलब तब म्यांमार वाज नॉट इंक्लूडेड. म्यांमार 1997 में आया और नेपाल और भूटान 2004 में. तो यहाँ पर आप कंट्रीज़ देख सकते हो कौन कौन है: बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल और भूटान. तो दे आर द मेंबर्स इन बिम्स्टेक. तो अभी क्या होने वाला है कि अभी बैंकॉक में समिट होने वाला है, और जो समिट बैंकॉक में होगा, दैट समिट will be the first in-person summit after the COVID pandemic. कोविड के बाद समिट हुआ था पर वो ऑनलाइन हुआ था. फिजिकल समिट इस बार कोविड के बाद फर्स्ट होने वाला है. लास्ट 2018 में काठमांडू में फिजिकल समिट हुआ था. ओके, द 5th बिम्स्टेक समिट was concluded virtually in 2022. श्रीलंका लेड द 5th समिट इन 2022. जो वर्चुअल समिट था उसमें श्रीलंका ने लीड किया था, और लास्ट उसके पहले काठमांडू में हुआ तो काठमांडू वाज लीडिंग, और अभी होगा ये बैंकॉक थाईलैंड में. ऑलराइट, सो यहाँ पर अगर थोड़ा और हम बिम्स्टेक रिलेटेड बात करते हैं तो व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिम्स्टेक. तो बिम्स्टेक के कुछ ऑब्जेक्टिव्स है, जैसे कि ये तो कंट्री दे आर आवर नेबर्स, यस और नो. तो नेबर्स के बीच एक कोऑपरेशन होना चाहिए. तो ऑब्जेक्टिव अगर हम बोले तो द ऑब्जेक्टिव इज़ रीजनल कोऑपरेशन इन कंट्रियों के बीच. ऑब्वियसली रीजनल कोऑपरेशन क्यों चाहिए? टू एनहेंस द ट्रेड, इन्वेस्टमेंट या फिर कनेक्टिविटी अमंग द कंट्रीज, सिक्योरिटी कंसर्न, टू काउंटर टेररिज्म, और यहाँ पे और भी आप देख सकते हो फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट ऑल्सो.
नाउ यहाँ पर और कुछ फैक्ट्स मैं आपको बता दूं कि जैसे कि बिम्स्टेक में 7 देयर आर 7 सेक्टर्स आइडेंटिफाइड इन द बिम्स्टेक फॉर कोऑपरेशन, जैसे कि नंबर 1 ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, नंबर 2 ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। देखिए ये जो 7 सेक्टर है, मतलब ये कंट्री मिलके, ये 7 कंट्री 1 2 3 4 5 6 7 कंट्री मिलके इन 7 क्षेत्र में काम करेंगे एक साथ, ठीक है। नंबर 3 में है एनर्जी, 4 टूरिज्म, 5 टेक्नोलॉजी, 6 फिशरीज एंड 7 पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट। और इन 7 कंट्री को इन 7 सेक्टर में लीड लेने के लिए बोला गया है। जैसे कि इंडिया ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन में लीड में है, बांग्लादेश ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट सेक्टर में उसने लीड लिया है। तो वैसे ही इन 7 सेक्टर में ये 7 कंट्री मिलके काम करेंगे। दैट इज़ ऑल अबाउट द बिम्स्टेक, ठीक है। तो इनके अंदर जो भी प्रोजेक्ट होंगे, जैसे कि हम अगर बोले नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी का जो फर्स्ट जो उसका थीम बोल सकते हो आप या प्रिंसिपल बोल सकते हो, दैट इज़ नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। मतलब इंडिया इंटरनेशनल लेवल पे पहले अपने नेबर्स के बारे में वो ख्याल करेंगे, जो आसपास अड़ोस पड़ोस के रीजन में रहते उनके बारे में पहले सोचेंगे, उसके बाद बाकी के बारे में। इवन इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द एक्ट ईस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया। सो बिम्स्टेक बनता है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक। एंड वी हैव अराइव्ड एट द लास्ट न्यूज़ ऑफ टुडेज करंट अफेयर्स एनालिसिस, that is GI tag has been conferred to Meghalaya's Rindia। तो GI tag ये सब जो है कल्चरल चीज़, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर द प्रीलिम्स। तो हम देखेंगे यहाँ पर रिंदिया क्या है। रिंदिया को अगर हम एक ही वर्ड में एक्सप्रेस करें, इट इज़ नथिंग बट द एरी सिल्क। दिट इज़ द एरी सिल्क, ठीक है। एरी सिल्क ऐसा नहीं कि हमें पता नहीं, यस असम में भी एरी सिल्क पॉपुलर है, पर असम में सबसे ज़्यादा अगर पॉपुलर है दैट इज़ द मुगा सिल्क। असम के कंटेक्स्ट में अगर हम जीआई देखते हैं तो असम के मुगा सिल्क को क्या मिला है, मुगा सिल्क को जीआई मिला है। तो वैसे एरी सिल्क को मिला है जीआई विच हैज़ बिन कन्फर्ड टू मेघालय, ठीक है। तो एरी सिल्क के बारे में अगर हम बोले, एरी सिल्क इज़ ऑल्सो नोन एज द अहिंसा सिल्क। ये इंफॉर्मेशन याद रखना, अहिंसा सिल्क। अहिंसा मतलब क्या है, अहिंसा मतलब नॉन वायलेंस, कि यहाँ पर सिल्क वर्म के साथ जो ये सिल्क वर्म है, क्या नाम है उस सिल्क वर्म का, फिलोसमिया रिसिनी। फिलोसमिया रिसिनी, इट इज़ द नेम ऑफ द एरी सिल्क वर्म। तो इस फिलोसेमिया रिसिनी या फिर एरी सिल्क वर्म को मारा नहीं जाता है फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ द सिल्क। अगर हम मुगा सिल्क को अगर देखते हैं तो वहाँ जो सिल्क वर्म है या फिर जो ककून है उसको गर्म पानी में उबाला जाता है, इट इज़ बॉइल्ड इन द वाटर। बट एरी एक्सट्रैक्शन के लिए उसको गर्म पानी में उबाला नहीं जाता है, तो वो सिल्क वर्म को मारा नहीं जाता है, हाथ से खोल के उस सिल्क को निकाला जाता है। इसी वजह से उसको कहा जाता है अहिंसा सिल्क। और एरी का खासी नाम है रिंदिया। रिंदिया का मतलब क्या है, इट इज़ द कैस्टर प्लांट। कैस्टर प्लांट कौन सा प्लांट है, जो एरी सिल्क वर्म को जो पत्ता खिलाया जाता है उसको कैस्टर प्लांट कहते हैं, और मेघालय में खासी लैंग्वेज में उसको कहा जाता है रिंदिया। ऑलराइट, सो यू हैव टू नो ऑल दिस डिटेल्स अबाउट रिंदिया सिल्क या फिर एरी सिल्क। प्रीलिम्स के लिए इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आ सकता है इस APSC प्रीलिम्स में दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, सो बी वेरी अपडेटेड। ऑलराइट, so here are 2 multiple choice questions for you. Try to answer this question 1 और question 2। ये अच्छे से क्वेश्चन को देखिए और इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और कमेंट सेक्शन में आप ये भी लिखिएगा कि आपको क्या और भी किसी टॉपिक के बारे में आपको जानना है, या फिर एनी काइंड ऑफ फीडबैक और एनी क्वेरीज इफ़ यू हैव फॉर द CACP IAS Academy, feel free to comment on our videos. Thank you so much. So we will be meeting in the next session. Till then, take care.